to Ek Samvad at Arunim Ankuran. We're in conversation with International Master Anup Deshmukh, India's resilient chess guru. Warm welcome to you, sir, and thank you for joining us today. Good morning, madam. Good morning. A word about Arunim Ankuran. Arunim Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact, and that's what inspires us to keep going. So it's absolutely a pleasure and delight to welcome our guest today. He's the first international master in chess from the Vidarbha region. He's the first chess Olympian of Nagpur. He's the recipient of the highest sporting honor of Maharashtra, Shiv Chhatrapati Award, both as a player and as a coach. I would like to introduce him. He has an absolutely amazing profile. It was very difficult for me to summarize it. He was born at Nasik on 30th January 1967. He represented India at USSR in 1987 and Brazil in 1991 for the World Youth Olympiad. He played Chess Olympiad for India in 1998 at Russia. He got the International Master Chess title in 1999. His peak chess rating was 2430 in 1998-99. He has been the chief coach of the Indian team, which won the overall championship in 2010 at Asian Youth Championship in China. He has played international tournaments like the Malaysian Open, Kuala Lumpur Open, and a long list of them. He has nurtured many Indian players who are now GMs, IMs, IWMs, WGMs, FMs, and CMs. He has been honored by the President of India for chess activities at the Rashtrapati Bhavan. He is famous for this achievement, under 25 Indian youth champion in 1989 and 1990 with a victory over Vishwanathan Anand. International Master Anup Deshmukh was the coach of the Indian team for the World Junior Chess Championship 2008 in Turkey, where India won the boys and girls gold and created a record. His legacy is rich. The Chess Olympiad 2024 also featured players who have been groomed by him, Vidit Gujarati and Divya Deshmukh. He believes in giving back to society and currently he is involved in chess promotion, his ongoing social work at District Anand. It's an absolute honor to have you here, sir, and we are so delighted to have this opportunity to talk to you. सबसे पहले आपसे पूछेंगे सर, why did you start playing chess and उसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ? Please. Actually, see, I started chess in 1970 to 73. Joe, question is like this: that why did I start it? I didn't start it actually. Some chess came near to my home. Oh, okay. And my guru, he was staying upstairs. So I used to regularly go to his house just to watch how they play chess. And my father had learned that game. That was his last sports. When my father, he was a depot manager. So once the depot work was over, so he used to play with all his team, office team. He used to, at evening time, he used to just play. And the office doors are closed, everything is locked or not. That time they used to play half an hour like that. So they had one very miserable condition chessboard was there. And when Dr. Rakhiwar, he came, there was a quarters type. His quarter was above us. We were in the ground floor. So he saw my father playing chess there. So he wanted that chessboard. So my father readily gave him. And then he lost interest also. And by that time, I was only knowing that chessboard where Dr. Rakhiwar sometimes play, that was given to my dad. and afterwards, Dr. Rakhiwar, he was in that chess activity only. So they had many chessboards. So then I was thinking that why they don't return the chessboard. That chessboard never came back. But there were many players, they were playing there. So that was the story. So by observing all this
best players from Amravati. I started just by observing only. I learned. Nobody taught me chess. I was just observing, and I was just serving them like whatever they need during the matches. The matches is to go hours and hours. So my work was to just give them, serve them water, then arrange the pieces. So every coming Sunday, Saturday. This happened for many years. Maybe from 1972 to 76, 75, I did this social work for them. Okay. And finally, I only became a player. I don't know how I became a player. But Dr. Rakhiwar used to say that to my father that he will become one of the best player of Amravati or Maharashtra. I was not knowing what was Amravati and what was Vidarbha and what was Maharashtra that time. Wow. This is how that started. तो आपको कोई memory है the first time you played? You know. I think I played in 75, 76. Dr. Rakhiwar only told me his coaching was the best in the world. Actually, to be frank, he never coached me, but he was my Guru. indirectly. I don't know. He said no need of anything for you. Neither he told any opening, but with in a group of chess players, I used to play. Used to keep on playing regularly day and night. We used to game. That was only the best. But when I left Amravati, when he used to send me for some tournament at Nagpur, his introduction was very amazing. His coaching tips were amazing. You have to go there. Some 7 to 9 rounds are there, and you have to win the tournament and then come back. That was the only tip. Okay. I used to get very scared to go to Nagpur and face all the players, and then I have to win there. But so much pressure was there that if you lose Amravati, we lose our importance because that time Amravati and Nagpur was a great rivalry. Just like football have some rivalry, France versus Brazil or something like that. So in those days it was like that. Okay. So many times I used to go and win tournaments. I didn't know how that happened because some of the players were too good than me that time. But my main strength was to keep on fighting, keep on fighting. I managed because of that endurance. They were better in all the departments. Opening, they were better. Middle game, they were better. End game. But my main weapon was concentration, observation, and just to give maximum resistance. That was my term. So in the long term, you know, when you look back, आपकी लाइफ पे चेस का क्या इम्पैक्ट हो गया? Actually, tragedies make you a player. I think maximum players, whatever I have observed in any game, tragedies make you a very great player. Actually, we migrated from Baroda. My father, of the Guardians, he was a Major General of Baroda Army. He had all the powers given to him by the kings of Baroda, two, Sayajirao Gaikwad, second and third. And during this time, he did plenty of social work. So his legacy is too big. And any marriages in any community, any complaint comes, so that complaint is to come to him, and he is to directly tell. The king has told you have to. This work has to get done. So he did a lot of social activities. And in our mother's side, we lost our grandfather. By accident, he was murdered by one of his friends, and that case continued. And we have to shift to Nasik first. Both the states got separated. I think 1st May 1960, Gujarat got separated. And till that time, both were under Bombay presidency, and both the states got an individual status. And we migrated via Nasik we came to Amravati. Because we had a village there, a lot of land we had. We had even one to Divanjis also looking after our lands and all. And father's side, he has lost both his parents at a very young age. So he used to stay with his mama at that time. My mother passed away in 1970, and as a tradition in Indian societies that time, he had to remarry with his mother's sister. We call Mausi. And she was again the main person behind me, always supporting for my chess. You don't play other games, you play only chess. Okay. So Dr. Rakhiwar and my stepmother, they were the main forces behind me. They made me a player. Wow.
So, among the many challenges that you faced, you were not being coached formally. तो आप जब खेलने जाते थे टूर्नामेंट्स में, तो आपको क्या लगता था कि, how was that experience? Actually, I think that other players were scared of me because they thought I am with maximum time with Dr. Prakash Rakhewar, means I must be the best player in Amaravati. So that was the psychological impact on them. Wonderful. So that I got. Hmm. So they had some fear about me, and I was very young. The second fear was that as I was just 8, 9 years old, I was with regular tournaments. So that was another problems for them. And Because I was unpredictable, आपका game unpredictable रहा होगा, because since you were not, going in that regular coaching route, what तो used to happen in my games when I analyzed today that notations and all that was in a Russian style, no, English style. Afterwards, when we were something around 11, 12 years old and notation changed to Russian. So what used to happen is in one game I had to play 3 rounds because I used to miss my victory in the 15th move, again in the 35th move, and again somewhere. So finally I used to win, but that process was very, very tiring. In one round, I have to waste energy of 3 rounds. It was all because of the knowledge. We didn't have any theoretical knowledge or something like chess, what we call like books and all. Nobody was proper to guide us. That when I was young, I was very lucky that I got a habit to going to the Vachnalaya. That Vachnalaya, they had some Russian collaboration books were there. It's in the USSR, that yes. Asia. So I used to get some articles from there. हाँ, तो I used to read that books. वो सब किताबें मैं पढ़ता था. वाचनालय मैं रेगुलरली शाम को वहीं जाता था. हमारा रात का टाइमिंग 6 बजे का रहता था, तो मैक्सिमम प्लेयर्स यूज्ड टू कम लेट ओनली एक्सेप्ट द यंगस्टर्स 20 इयर्स के नीचे, वो टाइम पे आते थे. बाकी जनरली लेट आते थे. तो मैंने कभी ऐसा वॉकओवर वगैरह ऐसा कभी नहीं लिया. कभी भी कोई ऐसे डिफिकल्टी में आते हैं, इफ एनीबॉडी कोई ब्लंडर करता है, तो मैं उनको चाल टेक बैक देता था. आई यूज्ड टू गिव देम टेक बैक. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया और मैंने उसको नहीं दिया मैक्सिमम टाइम. एंड फाइनली जब मैं सोचा कि मेरा लेवल अभी बहुत ज्यादा ही हो गया, तो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर वाज इन 1987. उसके पहले भी चांसेस थे, बट हमको मालूम ही नहीं था व्हाट इज पासपोर्ट और ये सब क्या है. में जब that was a collaboration between India and USSR, तो उस इसमें मैं गया था and everything was free taken care of by the government. तब मैं गया क्योंकि अपने पास पैसे ही नहीं थे ना. कौन पासपोर्ट निकालेगा, वो वहां जाओ फिर वो पासपोर्ट एयरपोर्ट चार्जेस भरो, ये करो. तो आपके रोल मॉडल्स कौन रहे? आपने जैसे किसको आप पढ़ते थे, जिनके बारे में, जिन चैंपियंस को आप देखते थे? हम जब बहुत छोटे थे तो एक हमारा क्वार्टर का लास्ट ईयर था, वो मे बी 75-76. पिताजी को डिपार्टमेंट का लेटर आ गया था कि यू हैव टू क्विट द क्वार्टर, छोड़ना पड़ेगा. बिकॉज ये एक्सटेंशन मिला था 6 महीने के 8 महीने का एक्सटेंशन. उसी दौरान क्या हो गया कि एक दारा सिंह और रंधावा का वहां पे मैच था, बहुत बड़ा मैच था. हमारे आगे एक साइंस का ग्राउंड था. वो फिर हमारे जो ओनर्स थे कि यहाँ क्या मालूम वो कैसे क्या आए, तो हमने उनकी आरती वारती उतारी दारा सिंह की कि ही शुड डिफीट. वो किंग कॉन्ग नाम का कोई पहलवान आया था फॉरेन से, उनके कोई और एक पार्टनर था किंग कॉन्ग, किलन कैमेरॉन ऐसा कुछ नाम था. तो फाइनली हम छोटे थे, 5-6 साल के थे, तो हम सोचते थे कि दारा सिंह जीत जाए और बहुत भगवान की पूजा करते थे. उनकी आरती वारती उतारा दारा सिंह की, और रंधावा थे. फिर वो पहले तो वो मार खाते रहे आधा घंटा, उसके बाद में दारा सिंह एंड हिज ब्रदर रंधावा वन, हम बहुत खुश हो गए. बाद में बहुत साल बाद पता चला कि वो तो एंटरटेनमेंट मैच था ना, WWF जैसा. हमको लगा कि वो एकदम सही से हो रहा है मैचेस. तो सर, आपने जब चेस खेलना शुरू किया, तो आप किन प्लेयर्स को यू वर लुकिंग अप टू, चेस प्लेयर्स जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, और उनके गेम से आपने क्या सीखा, वो बताइए. हम मेरा जो जनरेशन है 1967 बॉर्न, हम बॉबी फिशर वेव में हमारा मेन रोल मॉडल बॉबी फिशर थे एंड बोरिस स्पासकी. वो जो मैच था वो अभी तक का इतना पब्लिसिटी इतना किसी स्पोर्ट्स को नहीं मिला. आई थिंक मोर देन मोहम्मद अली का जो तारी में हुआ उनका बॉक्सिंग मैच अगेन फुरमन की कोई.
उससे भी ज्यादा पब्लिसिटी बॉबी फिशर को मिला, बिकॉज मोहम्मद अली के जो भी फाइट्स हुए वो उनकी ही कंट्री के लोगों से हुए, यूएसए वालों से हुए। एंड यूएसए तो आपको पता है, दे प्रोपोगेट इन ए वेरी कमर्शियल वे। उनका वो लोकल में ही था सारा कुछ, यानी यूएसए वर्सेस यूएसए, उनको दे हाइप ए लॉट। जैसे क्रिकेट में होता है ना, हमारे इधर हम ही उनकी कमेंट्री इतनी करते कि ऐसा लगता है कि दुनिया में दूसरा कोई गेम ही नहीं है। बिल्कुल। बॉबी फिशर का वैसा नहीं था। बॉबी फिशर वाज फाइटिंग विद यूएसएसआर। दोनों कंट्री में कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर वाज एट इट्स पीक। तो दोनों दोनों कंट्री चाहता था कि, उधर वो चाहते थे कि बोरिस स्पासकी अपना टाइटल मेंटेन करे, क्योंकि रेटिंग वाइज बॉबी फिशर उनसे आगे थे 100 पॉइंट से, और फिशर वाज डैम श्योर कि ही विल डिफीट बोरिस स्पासकी। बट स्पासकी ने उनके पुराने स्क्वायर में ही वाज प्लस, स्पासकी फिशर से कभी हारे नहीं थे। बट ड्यूरिंग द लास्ट 2-3 years बॉबी फिशर ने इतना प्रैक्टिस किया था, यानी जो हम सुनते ना महाभारत में युधिष्ठिर के बारे में, वो पानी में जाके वहां बैठ के प्राणायाम करते थे, आपने सुना भी होगा। He used to go into the water and he had a lot of stamina, up to 10 minutes या 15 minutes वो वहां प्राणायाम करते थे पानी में जाके बैठ के डीप वाटर में। वो बॉबी फिशर करता था। बॉबी फिशर का स्टेमिना बहुत था, वो जो ब्रेथ रोकता था दैट वाज मोर देन 10 मिनट्स। तो आप इमेजिन, यहाँ तो हमको 2 मिनट पानी में ब्रेथ रोकना मुश्किल है, दैट वाज हिज रूटीन। So that why he was extraordinary mentally. Fisher was the most fittest of his generations. वो पीरियड में he was 10-20 years ahead of us. और उसने जो बुक्स पढ़ी थी that was like 10,000 बुक में से थोड़ा सा मिलता है। So he glorified his game by learning point from maximum players all over the world. ऐसा उन्होंने डेवलप किया, and he defeated. तो उसी वेव में we came out. Bobby Fischer को defeated. Further we got our generation is very lucky कि we got एक से एक वर्ल्ड चैंपियंस चेस को मिले। First we got Spassky. Spassky was not only good in chess, he was a very good high jumper. वो रशिया के नेशनल टीम में भी था। Then Boris Spassky was very good athlete and as a human being very generous. फिर बॉबी फिशर मिले, उन्होंने जल्दी चेस छोड़ दिया। After 75 he never played and directly he played again return match 1992 में ही खेले वो। उसके बाद we got Karpov, a cool iceberg type of world champion, just like a competitor. Karpov के बाद we got Kasparov. Kasparov के बाद we got Vishwanathan Anand, Kramnik and the genius Carlsen. Chess is very lucky, हमको एक के बाद एक से बड़ा, उससे बड़ा मिलते गया। So that's why world over chess has become too much popular and player की strength जो है means our ordinary player can defeat a best player. That is the strength of chess. क्या चीजें एक चेस प्लेयर को ग्रेट बनाती हैं सर? क्या क्वालिटीज हैं या क्या स्किल है ग्रेट बनाती है? एक तो उसका लव फॉर द गेम, जैसे लाइक ए पेरेंट्स, मदर और फादर, दे लव देयर चाइल्ड। चेस प्लेयर जनरली उतना ही लव करता है अपने गेम से, उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। एंड फॉर दैट he is ready to take any type of pains, whether it is traveling, whether it is walking, whether even if the conditions not favorable, he adjusts himself every year because of the love and passion for the game. And if उसमें कुछ आपका पूर्वजों का कुछ आपको साथ मिल गया, मे बी डिवाइन पावर और एंड्योरेंस और फिजिकल और ऑल दिस थिंग्स, किसी को वो मिल जाता है तो उसमें तो और अच्छा हो जाता है। एंड सपोज गुरु मिल गया तो फिर कोई बचता ही नहीं। That makes him different. हाँ सर, ऐसे एक परसेप्शन है कि चेस बैठ के खेला जाता है तो उसके लिए फिजिकल फिटनेस की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे हमको इस बारे में? मैं तो यही बोलता हूँ कि आप स्कूल जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं पे जाओ, तो आपका जो बेसिक रहना है, कोई भी चीज एकदम नहीं सिखाना चाहिए। चेस हो गया, टीटी हो गया, ये हो गया, पहले आपको बेसिकली एथलेटिक्स इज द मदर। तो पहले आपको एथलेटिक्स आना चाहिए, इफ पॉसिबल स्विमिंग आना चाहिए, आपको मेडिटेशन के बारे में समझना चाहिए, आपको वाटर पानी के बारे में समझना चाहिए, पानी कितना पीना, आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में समझना चाहिए, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में हमने कैसे कपड़े वेयर करना चाहिए, या हमने किसी के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहिए। वी शुड नॉट quarrel एज अ प्लेयर विद एनी ऑफ देम, और वी शुड नॉट क्रिटिसाइज एनीबॉडी अननेसेसरीली।
हम अच्छा क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। एंड योर सर्कल शुड बी वेरी वेरी सपोर्टिव टू यू। इंस्पायरिंग लोगों में रहना है कि जो मोटिवेट करे, इंस्पायर रहे। यदि बहुत सारे प्लेयर क्या लोग क्या होते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके ड्रीम्स ही नहीं रहते आगे। एंड यू शुड बी अ ड्रीमर, अचीव मोर एंड मोर। कुछ तो भी नया करने की या वो बैरियर्स को तोड़ने की आप में इच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें बहुत आवश्यक। और फिजिकल फिटनेस, व्हाट अबाउट फिजिकल फिटनेस फॉर अ चेस प्लेयर? फिजिकल फिटनेस को इतना चाहिए कि जितना एक आधे बॉक्सर के लिए या जितना एक आधा एक वर्ल्ड का बेस्ट बोलते हैं ना डेकाथलॉन, जिसमें सबसे ज्यादा फिटनेस चाहिए, तो आपका उतना बड़ा फिटनेस चाहिए। क्योंकि आपको नॉट ओनली एक टूर्नामेंट, तो आप आपके ब्रेन को और फिजिकल को आप ऐसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि आप साल भर के लिए भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं कि मैं बीमारी नहीं गिरूंगा, मैं हर टूर्नामेंट में सक्सेसफुल रहूंगा, मुझे हेल्थ का कोई इश्यू नहीं आएगा। यू कैन सिंक्रोनाइज योर बॉडी एंड माइंड इन दैट वे कि मैं साल भर नहीं थकूंगा एंड आई विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स। इतना बड़ा वो पावर रहता है अपने ब्रेन का। तो दे डेवलप इन सच अ वे कि मैंने तो उसमें का 10% ही किया। जब मुझे समझा दैट वाज वेरी लेट। बट another thing is I was from a जैसे I have connection with village also, तो I used to walk a lot। कभी मुझे वो बहुत अच्छा हो गया कि हमारे यहाँ का सब कुछ बहुत जल्दी चले गया when I was 9 or 10 years old। तो इकोनॉमिकली कुछ हम तो एकदम बैंकरप्ट हो गए थे, कुछ बचा ही नहीं था, तो साइकिल भी नहीं थी, तो मुझे वॉक करके जाना पड़ता था। बाय द एज ऑफ 8, मे बी 7-8 मैंने देखा बहुत सारा। बट आफ्टर 8 years के बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद मुझे कुछ नहीं देखा कि आई वॉक एवरीवेयर एंड इट वाज गुड कि मैं फिजिकली फिट हुआ। मुझे हर रिस्क लेना पड़ा। अकेला अकेला ग्रैंड मदर को मिलने जाते थे, रात रात होती थी, फिर भी आई वाज अलोन टू गो टू द विलेज नाइट आल्सो फ्रॉम ऑल द जंगल्स एंड ऑल टू मीट हर। तो ये सब एडवेंचर्स हमको करने मिले। हो सकता है पेरेंट्स रहते तो वो और हमको प्रोटेक्ट करते थे, तो उसमें हम उतने ब्रेव नहीं थे। वो अच्छा हो गया कि एंड जब मुझे समझा, दैट टाइम आई वाज इन कोल्हापुर, तो मुझे समझा जब बोटविनिक का मैंने पढ़ा, ही वाज ओवर वन वर्ल्ड चैंपियन नंबर 6, मिखाइल बोटविनिक। ही वाज ए वेरी गुड इंजीनियर। ये चेस का रेटिंग जो निकाला ये उन्होंने ही निकाला। रशिया में जितना भी चेस डेवलप किया साइंटिफिक वे में, तो वो पूरा बोटविनिक ने डिजाइन किया। तो उनकी जो बुक हाथ में आई तो उन्होंने एक पर्टिकुलर चैप्टर लिखा था, फिटनेस इज वेरी एसेंशियल। तो उन्होंने उनके वर्कआउट्स बताए, वो कितना क्या क्या वर्क करते, कितना स्किपिंग करते, कैसा फुटबॉल करते। पहले 2 घंटे तो वो फिजिकली करते हैं और चेस तो उनका बाद में शुरू होता है। कभी भी वो चेस को ऐसा मुझे टच नहीं करते। पहला जो मेन कहता है कि पहले आपकी बॉडी बॉडी को खुश करो। बॉडी मन खुश हो गया तो बाद में फिर वहां जाओ। वाओ, वेरी वेरी वैल्यूएबल। जब तक आपके माथे से पसीना पसीना नहीं टपकता है, जितना अपन नहाने में पानी बर्बाद करते हैं ना, आधा बकेट 1 बकेट, उतना आधा बकेट पहले पसीना बहाओ, फिर मजा आता है लाइफ में। अरे तो सर, जैसे अभी जो यंग प्लेयर्स हैं, चेस प्लेयर्स, आप क्या उनके साथ टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि किसी टूर्नामेंट में अगर उनको जाना है तो उस टूर्नामेंट के लिए किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए? अभी तो इजी हो गया चेस। 1985 के बाद क्या हो गया कि ये लैपटॉप डेस्कटॉप ये सारी चीजें आ गई, तो वी वेर द न्यू जनरेशन इज ऑलरेडी वन स्टेप अहेड। हाँ, 2011 में मुझे समझा कि ये लैपटॉप क्या चीज है। वी हैव गॉन टू अनदर लेवल। सबके गेम्स वहां पे आगे मेगा बेस में। आई वाज वेरी लकी कि मैं मेरे पुराने गेम्स देख सका। तो उस गेम में हमारे जो हाथ से लिखते उसमें उतना प्रॉपरली वो जज नहीं कर पाते थे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बट चेस में क्या हो गया कि हमारे वर्ल्ड चेस फेडरेशन ने पूरे गेम्स, उन्होंने वो मेगा बेस करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें पूरे गेम्स उन्होंने पुराने पूरे उसमें डाल दिए। यानी 150 यानी नेपोलियन बोनापार्ट का भी गेम आपको देखने मिलेगा। नेपोलियन बोनापार्ट क्या खेला था, या 200 साल पहले अरिस्टोटल क्या खेला था, या वो लेनिन क्या खेले थे, उनके सारे गेम्स मिलते हैं देखने। यानी 500 साल की हिस्ट्री है पूरी। जैसे रहते हैं ना हमारे इंडिया में वो भाट लोग बताते हैं कि ये कहाँ से माइग्रेट हुए, वो कहाँ से माइग्रेट हुए, तो चेस में 500 साल का डाटा पूरा आ गया। तो उसमें मेरा गेम और अच्छा हो गया क्योंकि पहले तो हम इतना देखते नहीं थे, अभी तो हमको सब कुछ मिल गया। जो जो किताबें हमारी ऐसी पूरी चली गई थी, यानी हम किसी को देते ना यूज करने के लिए, वो वापस आता ही नहीं है किताब। तो नेट के वजह से वो भी सब किताबें आ गए पीडीएफ के फॉर्मेट में, इसके फॉर्मेट में। तो 45 के बाद क्या हो गया कि
मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आई वाज 2012 में बोला कि सर चेस छोड़ दो, अभी आपका उम्र हो गया है, अभी आपकी बस की बात नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन बहुत आगे निकल गया, आपको ये लैपटॉप वगैरह जनरेशन आप कॉम्पीट नहीं करोगे। तो मुझे बहुत बुरा लगा 2012 में। तो फिर मैंने जैसे बचपन में करता था, मैंने वही काम फिर से शुरू कर दिया। रात में सब सो गए तब 12 बजे मैं अकेला उठता था, लैपटॉप शुरू करके बेटी का, उसमें पूरा मेगा बेस में गेम, और वो ऑनलाइन खेलना 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, मैं सवेरे तक खेलता था। तो जब वो पेपर डालता था तो पता चलता था कि सवेरे हो गया, तब मैं फिर उसको ब्लॉक करता था। देन आई टू गो फॉर वॉकिंग वगैरह, फिर थोड़ा सा 1 घंटा नैप लेके फिर ऑफिस चलो, ये सब 1.5 साल किया मैंने। एंड देन 2014 से मैंने फिर बहुत टूर्नामेंट जीतना शुरू कर दिया, एंड देन आई बेट मैक्सिमम, मेरे स्टूडेंट को हराया मैंने जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था, वो भी एक रिकॉर्ड ही है। सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे अभी खेलते हैं उनके लिए, आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे, पेरेंट्स के लिए भी और कोचेस के लिए भी? बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे ने कोचिंग कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। अभी क्या है कि आपके पास इंटरनेट है और लैपटॉप है, तो चेस इज द इजी इजी गेम टू ट्रेन योरसेल्फ। मैक्सिमम वीडियोस है फ्रॉम बेसिक लेवल टू द जीएम लेवल। बहुत सारे वीडियोस फ्री में ही बहुत सारे चेस के प्रीव्यू ने डाउनलोड कर दिए, मेगा बेस है, आप कंप्यूटर से खेल सकते हैं। उसके अलावा आपको वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस से लेके अभी तक के, इवन वो गुकेश तक के पूरे गेम्स उनके मिल जाएंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ मिलती है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसा आपका जो उम्र है और गुकेश का उम्र देख लेना, कि उस उम्र में मैच करके कि उनका गेम कैसा था, आपका गेम कैसा है, आपके पूरे गेम एनालाइज करिए। फिर यदि आपका गेम और उनका गेम मैच नहीं होता है, व्हेन ही वाज 10 एंड यू आर 10 इयर्स ओल्ड, तो समझ जाओ कि आपका पेंटिंग वर्क बहुत ज्यादा है। तो आपको ये देखना है कि जब हम 10 साल के हैं या कार्लसन 10 साल का है, वो कैसा खेलता था, जुडिथ पोलगार 10 साल की, हम 10 साल के, कैसे खेलते हैं। तो उनका गेम कौन से लेवल पे था, हमारा कौन से लेवल पे है, तो हमने कितना इंप्रूव करना चाहिए। अच्छा, नाइट मूवमेंट में हम वीक पड़ रहे हैं कि बिशप मूवमेंट्स में या रुक मूवमेंट्स में या किंग मैनेजमेंट में या ओवरऑल गेम में, या हम अपोनेंट की मूव ही नहीं प्रिडिक्ट कर पाते, तो वो एरिया में आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। तो और टूर्नामेंट्स आपने मैक्सिमम खेलना है, टूर्नामेंट नहीं छोड़ना है। हर 1.5 महीने में एक तो भी टूर्नामेंट अच्छी आपको खेलना है। तो टूर्नामेंट इटसेल्फ, उसमें आपका क्या होता है, आप 2-3 भी गेम जीतते हो तो आपका मॉरल बढ़ जाता है, या एक आधा भी आप अपसेट करते हो तो आपका मॉरल बढ़ता है। और मेन चीज है कि आपने कम से कम स्टेप बाय स्टेप सारे वर्ल्ड चैंपियंस का पूरे गेम्स खुद में एनालाइज करना चाहिए। आपके जितने भी प्रेडिसेंस है पूरे उनके गेम्स आपने एनालाइज करते रहना चाहिए। तो उसमें आप बहुत आगे निकल जाओ। यानी आपका एम चाहिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर बनना, यही एम रहना चाहिए, तो आप सबसे अच्छा चेस खेलें। तो आपने जो इतनी कंट्रीब्यूशन किया है सर चेस के लिए इस देश में, आपके कोई प्लेयर्स हैं जो आपको बहुत प्रेशियस हैं, आपको लगता है कि हाँ इन्होंने मेरे से सीख लिया? और अभी ये क्या है कि सभी बाय कोइंसिडेंस ही मेरे पास आए। तो मैंने उनको ट्राई किया कि स्पिरिचुअली उनको बहुत स्ट्रांग करने का ट्राई किया। मेरे भी जो स्पिरिचुअल गुरु है, आपको तो मैंने कल बताया सब, तो उनको भी मैंने बोला कि इनका ऐसा कुछ तो भी ब्लेस करो कि ये इनका लाइफ नाम बहुत रहे। तो हमारे दोनों टीम में स्पिरिचुअल तो सभी है, बट क्या रहता है स्पिरिचुअल के साथ इफ गुरु का भी बैकग्राउंड रहा तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो आई थिंक उस टीम में विदित का रहना, तो दैट वाज ए स्पिरिचुअली टीम बहुत स्ट्रांग थी, विदित गुजराती। एंड इस साइड में दिव्या वाज आल्सो ब्लेस्ड, शी इज आल्सो स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रांग। तो ये दोनों का रहना टीम में, दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि चेस के लिए अभी बहुत कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। अब उनके प्लेटफॉर्म, उनके डीवीडीज है वर्ल्ड ओवर, फेमस फेमस बहुत है। बट सभी स्टूडेंट, मेरे को अच्छा लगता है कि अभी विदित भी फिजिकली इतना फिट है, वो तो वैगन बन गया, ही इज अ वैगन नाउ। और सभी सभी का जो फिजिकल कंडीशन है, इट इज फार बेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास फिटनेस। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई सर, कि लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि फिजिकल फिटनेस इज द की टू बीइंग सक्सेसफुल इन एनी यस, स्पोर्ट, इवन फिजिकल चेस। एंड स्पिरिचुअल, और ये जितने भी प्लेयर है दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड हम्बल, बहुत ही ऑनेस्ट है।
कोई स्पोर्ट्स में आगे जाने के लिए आपको ऑनेस्टी बहुत चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं थोड़ा सा सक्सेस ले लूंगा, इंटर कॉलेज कलर कोट एंड ये वे स्कूल चैंपियनशिप। तो मैंने उनको बचपन में लिख के दिया था, ये 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ता है अपना नॉर्मल वेरी वो स्कूल लेवल वगैरह, दूसरा एक ऑल इंडिया ओपन खेलते, वो भी कोई ये नहीं। मेन चैनल इज अनदर अनदर लाइन। तो आपको सबको मेन चैनल में ही खेलना है, जहाँ पे पूरी दुनिया लड़ने आती है। आपको वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड उधर नहीं जाना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जहां से कम में ज्यादा पब्लिसिटी, वो सबको अच्छा लगता है। So, thank you, sir. It was wonderful talking to you on एक संवाद at अरुणिम अंकुरन। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, and we wish you the very best. थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक यू। You're doing amazing work, sir, for the chess players in this country, and we are grateful to you for your contribution. Thank you, sir. नहीं मैडम, मेरा हो चुका है, मेरा चेस में मोक्ष हो चुका है। और मैं तो सोचता था कि वो बच्चे लोग करेंगे। मुझे तो लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। रिलेशन में वगैरह जिनको जिनको हेल्प किया है वो तो सब बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच गए। कोई रिलायंस में बड़े पोस्ट पे, कोई इसके बड़े पोस्ट पे। बहुत लेट मुझे समझा 20 साल बाद कि वो उनके पहुंचने से अपने को अंदर से अच्छा लगता है, बट वो पेट भरने के लिए सफिशिएंट नहीं है। वी हैव टू वर्क। Yes. यस, चलो ना, टेक केयर। Thank you, sir.